حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، بھینسا میں ایک مرتبہ پھر فرقہ وارانہ تشدد، ذوالفقار مسجد پر سنگباری کی خبریں آ رہی ہیں۔ میں وہ فوٹوز اور تفصیلات سناتا ہوں تو وہیں پر اس وقت شمالی کشمیر کی ضلع بارہمولہ میں خطرناک آتش زدگی کی واردات پیش آنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو رافیل جنگی جہاز بنانے والے کمپنی کے مالک حادثے کا شکار ہونے کی خبریں ہیں۔ تو وہیں سوئٹزرلینڈ میں برقعے پر پابندی کا جو ریفرنڈم تھا وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ مسلم تنظیمیں ناراض نظر آ رہی ہیں۔ زمین کے قریب نہیں سپر ارتھ، میں یہ تحقیق کی بات کروں گا آج ایک اور۔ اس کے علاوہ بھی راجستھان زندہ جلائی گئی ریپ متاثرہ کی موت، اور کس طرح سے بی جے پی نے 3 ٹرین لیے تھے مودی کے ریلی میں آدمیوں کو بھرنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، کیا کرنا ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ برائے مہربانی ادارے کو مضبوط کرنے میں ہر شخص اپنا حصہ شامل کرے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو لے چلوں اور وہ ہے بھینسا، ایک حساس علاقہ۔ اس سے پہلے بھی یہاں فرقہ وارانہ فسادات پیش آ چکے ہیں۔ کئی مسلم نوجوان اور دونوں فریقوں کے مابین نوجوان زخمی بھی ہوئے، حراست میں بھی لیا گیا۔ اب ایک چھوٹے سے معمولی سے واقعے کو لے کر کے دیکھیں کس طرح حالات خراب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تلنگانہ کے حساس علاقے بھینسا شہر میں فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا، جس کے بعد محلہ ذوالفقار میں بڑے پیمانے پر سنگباری کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں ذوالفقار مسجد کو نشانہ بناتے ہوئے نقصان پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں مکان، موٹر سائیکل اور دیگر اشیاء کو نذر آتش کر دیا گیا۔ سنگباری میں 6 افراد شدید زخمی ہو گئے، جن میں ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، جبکہ ایک اور رپورٹ کے مطابق لگ بھگ 21 افراد زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ سنگباری میں پولیس کو نشانہ بنایا گیا اور حالات کو دیکھتے ہوئے دیگر مقامات کی پولیس کی بھاری تعداد بھی طلب کرتے ہوئے تعینات کیا بتایا جا رہا ہے کہ دونوں طبقوں کے بچوں کے درمیان موٹر سائیکل کی تصادم کا معمولی واقعہ پیش آیا تھا۔ اس معمولی واقعے کو لے کر شرپسندوں نے فرقہ وارانہ رنگ دے دیا اور تشدد برپا کرتے ہوئے مسلم علاقے ذوالفقار اور ذوالفقار مسجد پر سنگباری اور پتھر بازی کرنا شروع کر دیا، جس میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ ان میں ایک صحافی اور ایک سب انسپکٹر غوث بھی شامل ہے۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی بھینسا شہر میں افواہوں کا بازار گرم ہو گیا اور دکانات بند ہو گئے اور دیکھتے دیکھتے حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے، جبکہ متاثرہ محلہ ذوالفقار میں موجودہ مسلم خاندانوں کے خواتین اور بچوں کو مقامی قائدین اور اراکین بلدیہ نے محفوظ علاقے میں منتقل کر دیا۔ اس واقعے کی اطلاعات کے بعد ایڈیشنل ایس پی رام ریڈی نے فوری طور پر پولیس جمعیت کے ہمراہ بھینسا پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ انچارج ایس پی ٹریمل وشنو بھی پولیس جمعیت کے ہمراہ یہاں پہنچے۔ افواہوں سے سرحدی علاقے کے خلاف میں خوف و دہشت کا جو ماحول پیدا ہو گیا اس کو دور کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، کئی مکانات، کئی آٹو رکشہ، کئی موٹر سائیکلیں اور بہت سارے اشیاء کو اس وقت شرپسندوں نے بالخصوص جو اس حالات کو پوری طرح سے فرقہ وارانہ رنگ دے کر کے مسلمانوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور پوری طرح سے نقصان پہنچایا ہے۔ زخمیوں کو نظام آباد منتقل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ رات دیر گئے تک سنگباری کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں بھینسا پر لگاتار اس وقت فرقہ پرستوں کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات کو ان کو لے کر کے بھینسا میں آگ لگانے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہاں کی حکومت کو، یہاں کے پولیس انتظامیہ کو جان لینا چاہیے کہ کس طرح سے جہاں ایک اقلیتی
कम्युनिटी को बिलखुसूस निशाना बनाने की कोशिश हो रही है छोटी छोटी बातों को लेकर के। बहरकैफ इस वक्त पुलिस का दावा है कि हालात मामूल पर लाने की कोशिश हो रही हैं। देखते हैं कि आज रात कहीं फिर फ़िरका परस्त कहीं घर से निकल ना जाएं और फिर जो है मुसलमानों के घरों को निशाना बनाने की कोशिश ना करें। ऐसे में पुलिस इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको पूरी तरह संजीदगी से भी ले और हुकूमत की भी। आइए नाज़रीन, मैं आपको अगली खबर की जानिब ले चलूं, बल्कि मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले ममता बनर्जी की इस वीडियो को देखेंगे कि किस तरह से जो है कल जो रैली मुनक़िद हुई उसमें कितने बड़े पैमाने पर लोग उनके साथ शरीक हुए, उनके चाहने वाले, उनके हामी टीएमसी के ताल्लुक़ रखने वाले, ताहद निगाह उनके चाहने वालों की जो है रैली निकल रही थी। वहीं पर जो है दूसरी जानिब मोदी की भी रैली निकल रही थी और उसमें भी बहुत सारे लोगों की शिरकत की खबरें आई और लंबी तादाद में। लेकिन आज एक ख़बर सामने आई और वो ख़बर इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। जी हाँ, बीजेपी हायर्स 3 ट्रेन्स फॉर RS 60 लाख टू फेरी सपोर्टर्स टू मोदीज रैली। यानी मोदी के रैली में सपोर्टर्स को लाने के लिए बीजेपी ने 3 ट्रेन को ले लिया 60 लाख रुपए की मालियत, कहते हुए इसको शेयर करने की कोशिश हो रही है। यानी कि आवाम को सियासी रैली में भरने के लिए कितना पैसा खर्च किया जाता है और किस किस तरह से जो है ये सारी चीज़ें सामने लाने की कोशिश होती हैं। ये तो बड़े अखबारात ने शायद नहीं किया है, अलबत्ता एक ऑनलाइन अखबार ने इसको शेयर करते हुए पूरी तफसीलात पेश करने की कोशिश की है। तो ऐसे हालात में सियासत में जो भीड़ सियासी रैलियों में, सियासी जलसों में, सियासी जुलूसों में जो भीड़ जमा होती है उनको इकट्ठा करने में और अपने फॉलोअर्स की तादाद को, अपने कारकुनान की तादाद को, अपने हामियों की तादाद को बड़े पैमाने पर दिखाने के लिए क्या कुछ होता है वो इस खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और होती हैं और आवाम को इकट्ठा करने का कुछ और ही जो है उसका ज़रिया होता है, ख़रीदा जाता है और क्या क्या कुछ होता है। ये सारी चीज़ इस खबर से सामने आ रही हैं। इस वजह से जो है इस कटआउट को जो है शेयर करते हुए सोशल मीडिया में तबसरों का बाज़ार गर्म हो चुका है। आइए नाज़रीन, शिमाली कश्मीर की ज़िला बारामूला में ले जाना चाहता हूँ आपको। शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के रफ़ियाबाद इलाके में आग की एक शबाना वारदात में कम से कम 20 दुकानें खाकस्तर हो गई हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि ज़िला बारामूला में रफ़ियाबाद के वतरगाम इलाके में इतवार और पीर की दरमियानी शब एक 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की एक दुकान से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने चश्मज़दन में दीगर मुत्तसिल दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने बताया कि फायर टेंडर्स के जाए वारदात पर पहुंचने से कबल कम से कम 20 दुकानें राख के ढेर हो चुकी थी। उनका कहना है कि तिजारती इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा और दुकानों में मौजूद करोड़ों रुपए की मालियत का साजो सामान जल गया है। ऐसे हालात में कि नाज़रीन गिरामी महंगाई छू रही है और कारोबार नहीं है, ऐसे में इस तरह एक बहुत बड़ा नुकसान होने से लोग जो है तत्तर बित्तर हो चुके हैं और बहुत बड़ा नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो में इस वक्त आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो बहुत ही शर्मनाक है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसान आंदोलन चल रहा है, इसकी वजह से जो है बिलखुसूस जो है सिख मज़हब के लोगों को जो है निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं, एक मोदी भक्त जो है वो एयर फ्रांस फ़्लाइट में जो पेरिस से दिल्ली आ रही थी वहाँ पंजाबियों को जो है गालियाँ देने की कोशिश की, उन पर अटैक करने की कोशिश की, सिर्फ इसके चलते, किसान आंदोलन के चलते। इस वजह से जो है मुताल्लिका उस मोदी भक्त, कहा जा रहा है कि मोदी भक्त है, पता नहीं क्या रियलिटी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसे अफराद ही इस तरह जो है इस वक्त किसान आंदोलन के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी का ही हामी हो सकता है या दीगर किसी भी पार्टी से जो हिंदुत्व का हो सकता है। वो यहाँ पर जो है एक तो मुसाफिरों को भी परेशान किया, दूसरा है कि जो लोग स्टाफ होते हैं इस फ़्लाइट के उनको भी परेशान किया, गाल गलौज करने की कोशिश की और हमला करने की कोशिश की पंजाबियों पर। तो फिर आखिर उनको बल्गारिया में अचानक जो है टेक ऑफ करके फ़्लाइट को उस शख्स को जो है बाहर निकालना पड़ा, नीचे उतारना पड़ा। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल ये कहते हुए कर रहे हैं कि ये हालात हैं कि क्या असल है, क्या हक़ाइक़ है, जानने की कोशिश किए बगैर इस वक्त पंजाबियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से खबर आई थी कि किस तरह हमला किया गया था पंजाबियों पर एक कार को रोकते हुए। अब ये खबर जो है पेरिस से आ रही है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये भक्त जो है हिंदुस्तान को और भारत को बदनाम कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और अगली ख़बर है राफ़ेल। आप जानते हैं राफ़ेल को लेकर के कितनी सुर्खियां बनी, क्या कुछ हुआ। राफ़ेल जंगी जहाज़ आ भी गए हिंदुस्तान में और चूँकि जो घपलाबाजी की बातें आई तो उस वजह से राफ़ेल बहुत ज़्यादा लोगों के, बल्कि भारत का हर शख्स, हर बच्चा जानता है मामला। अब जो है
जो राफेल बनाती है जंगी जहाज़, उस कंपनी के मालिक वोल्वियर की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत होने की वजह से मरतबा फिर ये खबर सुर्खी में आ रही है। वोल्वियर फ्रांस के पार्लियामेंट के रुकन भी थे और वोल्वियर छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। इसी दौरान उनका प्राइवेट हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और उनकी मौत हो गई। वोल्वियर की मौत पर फ्रांस के सदर ने रंजो गम का इजहार किया है। फ्रांस के सदर ने ट्विटर पर लिखा, वोल्वियर फ्रांस से प्यार करते थे। उन्होंने सनअतकार, मकामी इलेक्शन अफसर, कानून साज और फ़िज़ाइया के कमांडर के तौर पर मुल्क की खिदमत की। उनकी नागहानी मौत एक बहुत बड़ा खसारा है। उनके कुंबे और अहल खाना की ताज़ियत। वह नाज़रीन, हिंदुस्तान के लिए खबर बहुत अहमियत के हामिल इसलिए बनी कि राफेल के सिलसिले में जो मुद्दे उठाए गए, जो तनाज़े हुए, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अब उसी कंपनी का मालिक हेलीकॉप्टर के हादसे का शिकार हो गया। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ स्विट्ज़रलैंड। बुर्क़े पर पाबंदी का जो रेफरेंडम था उसको जो है बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं, जिसकी वजह से मुसलमान तंजीमें परेशान हो चुकी हैं। स्विट्ज़रलैंड में दाएं बाजू की एक तंजीम की जानिब से तजवीज़ पर इतवार को मुल्क भर में इस बारे में रेफरेंडम हुआ, जिसमें आवाम से राय ली गई कि आया चेहरा ढांपने पर पाबंदी लगाने के लिए आईन में तरमीम की जाए। सरकारी नताइज के मुताबिक रेफरेंडम 48.8% के मुकाबले में 51.2% से कामयाब हो गया। स्विट्ज़रलैंड में जमहूरियत के निज़ाम के तहत की गई इस तजवीज़ में बराह रास्त इस्लाम का जिक्र नहीं और उसका मकसद पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को मास्क पहनने से रोकना भी है, मगर मकामी सियासतदानों, मीडिया, हुकूक़ की मुहिम चलाने वालों ने इसे बुर्का बैन का नाम दे दिया है। रेफरेंडम पर वोटिंग से कबल रेफरेंडम कमेटी के चेयरमैन और स्विस पीपल्स पार्टी से निमान के रुकन वाल्टर वेबमैन ने कहा, अपना चेहरा दिखाना स्विट्ज़रलैंड में रिवायत है, यह हमारी बुनियादी आज़ादियों की एक अलामत है। उनका मानना था कि चेहरा ढांपना इंतहा पसंदी और सियासी इस्लाम की एक अलामत है जो यूरोप में बहुत ज़्यादा आम हो गई है और उसकी स्विट्ज़रलैंड में कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी जानिब मुस्लिम तंजीमों ने इन नताइज की मजम्मत करते हुए कहा है कि वो इसको चैलेंज करेंगे। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मुस्लिम्स इन स्विट्ज़रलैंड ने कहा, आज के फैसले ने पुराने ज़ख्मों को खोल दिया और कानूनी अदम मसावत को बढ़ाने के साथ साथ मुस्लिम अक़लियत को एक पैगाम भेजता है कि वो माशरे से बाहर हैं। तंजीम ने कहा कि वो इस पाबंदी के नाफिज होने के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे और फंड रेजिंग करेंगे ताकि इन ख़वातीन की मदद कर सके जिन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में पूरी तरह से बुर्क़े को बैन करने की पूरी तरह कोशिशें हो रही हैं, यानी चेहरा छुपा नहीं सकते आप। इस तरह की चीज़ों की वजह से जाहिर सी बात है कि इस वक्त यूरोपियन में जो बहुत ज़्यादा मौजूद बहस भी होते हैं हर चीज़ को, अब जो है स्विट्ज़रलैंड में आने की वजह से अब पूरी दुनिया में ये मौजू इस वक्त बहस में आ गया है। आइए नाज़रीन, मैं आपको एक तहकीकी खबर के बारे में बताऊं। साइंसदानों ने कुर्रे अर्ज़ से निस्बतन करीब ही एक नया सैयारा सुपर अर्थ दरियाफ्त कर लिया है। ये वो सैयारा है जिसे साइंसदान ढूंढने का बरसों से ख्वाब देख रहे थे। नाज़रीन गिरामी, बहैसियत मुसलमान हमारा इस बात पर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को जिस अंदाज़ में और जिस खूबसूरत अंदाज़ में बनाया है, उसके बहुत सारे ऐसे राज हैं जो गुज़रते अय्याम के साथ खुलते जा रहे हैं और क़यामत तक एक एक राज खुलते जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद हम उसकी कुदरत का, उसकी कायनात में मौजूद खूबसूरतियों का और कायनात में मौजूद उसके राजदाराना वसाइल, कुदरती वसाइल और ज़ेर ज़मीन मौजूद उसकी नेमतों का हम अहाता नहीं कर सकते। इस बात को पूरी तरह से अपने जहन में बिठाते हुए इस खबर को आप सुने। मुहक्किकीन का कहना है कि यह सैयारा हमारे निज़ाम शमसी से बाहर पथरीली चट्टानों वाले दीगर सैयारों पर मौजूद माहौल को समझने के लिए बेहतरीन जगह हो सकती है। इस नई दुनिया को ग्लेज 486b का साइंसी नाम दिया गया है, मगर इसे सुपर अर्थ भी कहा जा रहा है क्योंकि हमारी दुनिया की तरह ठोस और पथरीली ज़मीन पर मुश्तमिल है, लेकिन यह हमारे कुर्रे अर्ज़ से कहीं ज़्यादा बड़ा है। सुपर अर्थ के नाम के बावजूद ये कई लिहाज से हमारी ज़मीन से मुख्तलिफ है। ये सैयारा हमारी ज़मीन से 30% बड़ा और तकरीबन 3 गुना ज़्यादा भारी है। ये इतना गर्म है कि उसकी सतह पर सीसा पिघल सकता है और वहाँ लावा के दरिया उसकी सतह पर बहते हैं। एक सितारे के गिर्द घूमने वाला ये सैयारा सिर्फ 26 नूरी साल दूरी पर है, जो कायनात में हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है। ग्लेज 486b मदार में गर्दिश करते हुए एक सुर्ख छोटे सितारे से कुर्बत की वजह से मुहक्किकीन की नज़र में आ गया। उसकी एक हैरत अंगेज़ वजह यह भी है कि ये एक मुंतकिल होने वाला सैयारा है और जब ये अपने सितारे के सामने से गुजरता है तो साइंसदान उसका अच्छी तरह से नज़ारा कर सकते हैं और उसके माहौल की जांच कर सकते हैं। ताहम साइंसदानों के लिए इस सैयारे का मुताला करने का ये वाहिद तरीक़ा नहीं है, ये गैर मामूली बात है क्योंकि उसे 2 तरीक़ों से देखा जा सकता है। एक तो उसे सितारों को अबूर करते हुए देखा जा सकता है और दूसरा
डुपलर रेडियल वेलोसिटी के ज़रिए भी उसका पता लगाया जा सकता है। दोनों तरीक़ों को मिलाकर इस सैयारे और उसके माहौल के बारे में मज़ीद तफसीली मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इसका माहौल ख़ास तौर पर साइंसदानों को ज़्यादा पुरजोश बनाता है क्योंकि इतना गर्म है कि उसके माहौल के फैलते हुए दर्जे हरारत की माहिर फल्कियात पैमाइश कर सकते हैं। दूसरे सैयारों के माहौल को जानने का एक कलीदी तरीक़ा है कि आया वहाँ ज़िंदगी के लिए क्या इम्कानात हैं। अगर इसका इम्कान कम है तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि इसका सितारा गैर मुस्तहकम है जो उसे कभी भी मिटा सकता है। शायद इसी वजह से यहाँ ज़िंदगी के इम्कानात कम हैं। ज़्यादा तरक्की याफ्ता माहौल ये तजवीज़ करेगा कि ज़िंदगी के लिए बेहतर जगह हो सकती है। ग्लेस 486b की सतह का दर्ज हरारत 430 डिग्री सेल्सियस है और इस तरह यहाँ हमारी जैसी ज़िंदगी का तस्वुर करना बहुत ही मुश्किल है। मैं कहब नाज़रीन, साइंसदानों ने बहुत लंबी रिपोर्ट और बहुत लंबी तफसीलात इस सैयारे के सिलसिले में दी हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखने का सीधी बात का अपना मकसद ये है कि गुज़रते अय्याम के साथ सर्च जारी रहेगी और अल्लाह ताला की कुदरत एक एक करके उसकी सारी नेमतें हमारे सामने आती जाएंगी। ऐसे में साइंस से हट कर के हमें अल्लाह की एक होने पर और उसके खालिक और रज़ाक़ होने पर पूरी तरह से यकीन कर लेना चाहिए और उसमें इजाफ़ा होता ही जाना चाहिए। आइए नाज़रीन गिरामी, आखिरी में एक ख़बर आप लोगों के सामने रखते हुए आप लोगों से इजाज़त लूँ कि राजस्थान में ज़िंदा जलाई गई 30 साला रेप मुतासिरा की सनीचर की सुबह इलाज के दौरान जयपुर के अस्पताल में मौत हो गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें एक वो है जिसके खिलाफ मुतासिरा ने 2 साल पहले रेप की FIR दर्ज कराई थी। ये वाक़या हनुमानगढ़ ज़िले के गोलूवाला की है। मुतासिरा गोलूवाला में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। पुलिस ने बताया कि जुमेरात 4 मार्च को अलग सुबह एक शख्स मुतासिरा के मकान में घुसा। बाहर से कमरे में मिट्टी का तेल छिड़क कर दरवाज़ा खटखटाया। जब मुतासिरा ने दरवाज़ा खोला, मुलजिम ने जलती हुई एक लकड़ी उसकी तरफ फेंक दी, जिससे वहां आग लग गई और खातून बुरी तरह से झुलस गई है। भाई नाज़रीन, ये भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आई थी। हिंदुस्तान में, भारत के अलग अलग रियासतों में औरतों के ख़िलाफ़ हो रही जुल्म सितम की कहानियाँ आप पढ़ें, क्या कुछ हो रहा है इसका अंदाज़ा लगाएं। लेकिन इस बुनियादी मसाइल पर, जराइम पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। हर कोई सियासी पार्टी वो जो है, और सबसे ज़्यादा BJP पार्टी, चाहे बंगाल के इलेक्शन को हो या आने वाले इलेक्शन को लेकर के सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद यही कहने के लिए दर पे हुई है। कभी कश्मीर का नाम सामने लाया करके जो है बदनाम करने की कोशिश होती है, तो कभी कोई और मसाइल में लगाकर। लेकिन ज़मीनी सतह पर यहाँ का आम भारतीय बाशिंदा जो चाहता है इसकी मसाइल हल करना है, वो कोई भी पार्टी बात करने को तैयार नहीं है। मैं कहब नाज़रीन गिरामी, योम निस्वां है। योम निस्वां के मौके पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है भारत में ख़वातीन के हुकूक़ को लेकर और किस तरह उसकी पामाली हो रही है। मुझे यहाँ इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।